Hello everyone, welcome back. So we are back again with another video where we are discussing agriculture optional mains paper of 2020. So we have seen up to plant breeding, and in this lecture we will discuss about in this video we'll discuss about seed science, horticulture and probably plant protection. So starting with seed science, look, in paper 2 there are 5 main subjects. Okay, 4 subjects are, one is horticulture. If you keep that aside, because you cannot guess the weightage, because some years you can see that you will see that the weightage of horticulture is around 80 to 90 marks, and in some years the weightage will be of 30 or 40 marks. So the range is very large, so we cannot guess that. So if you keep horticulture aside, genetics, plant breeding, seed science and plant physiology, these are 4 important traditional subjects in paper 2. Okay, so in seed science, this question, protection of plant variety and Farmers' Right Act. So this is one of the favorite questions of the examiner. So ये almost every alternate year, या फिर तुम बोल सकते हो हर साल almost 1-2 साल skip हुआ होगा. Otherwise in the last 5 to 6 years it has appeared either in Indian Forest Service or UPSC mains exam. So what is PPFRA 2001? What are breeders' rights or what are farmers' rights? Or explain the features, main characteristics of the statute. कुछ भी पूछ सकता है, right? So here they have asked for 20 marks. Now explain protection of plant varieties and Farmers' Right Act 2001. Now there are 2 parts in the question. 2 parts हैं. First part explain करने के लिए बोल रहा है statute को पूरा. Okay. So then second part is give an account of protection provided to farmers, breeders and indigenous property rights under the PPFRA Act. So there are 2 parts. First part में क्या है, mainly because it is for 20 marks, दोनों parts को 10 marks में divide कर लो approximately. Okay, so first part में you have to describe the main features of the statute. So what are the different kinds of varieties which can be registered? Then what is the test the variety has to qualify in order to get registered? Dust test, distinctiveness, okay, then stability and uniformity. ये dust test को pass होना पड़ेगा तभी तुम्हारा variety register कर सकते हो. Then explain what is the duration of protection. So 15 years for normal varieties and normal crops and 18 years for trees and vines. Then what varieties cannot be registered. जैसे terminated technology अगर use किया तो you cannot register in India. Then essentially derived variety क्या है, explain those things. Okay, after that National Gene Fund. Okay, National Gene Fund क्या है, and then you can also write about compulsory licensing, National Register Authority, उनके बारे में पूरा वो सारा चीज तुम फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करोगे. In the next part specifically under different headings, breeders rights पहले लिख दो, फिर उसके नीचे farmers rights, उसी के अंदर तुम्हारा indigenous right भी आता है. Like farmers right, farmers के पास तो है, farmers can also sell, resell, all that except using trade name. Then again the breeder has to disclose he has to disclose everything about the variety to the farmers, like about the yield, okay, under what conditions it will provide you that particular average yield, and if the variety fails to provide that particular yield, compensation देना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम द ब्रीडर और मैंने बोल दिया कि हाँ ये मेरा वेराइटी है, ये 30 क्विंटल्स या 40 क्विंटल्स पर एकड़ देगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो फार्मर्स ने तुम्हारा बात को बिलीव करके खरीद लिया, बट व्हाट इफ इट डज नॉट परफॉर्म, then in those cases
कंपनसेट करना पड़ेगा फार्मर्स को अगर झूठ बोला है तुमने तो, इफ द वेराइटी डज नॉट परफॉर्म टू द आई मीन व्हाट यू हैव क्लेम्ड, अगर ऐसा परफॉर्म नहीं किया तो अगेन कंपनसेशन देना पड़ेगा. सो डिफरेंट हेडिंग्स में लिखना, एक साथ पूरा लिखोगे ना तो सी देयर आर टू पार्ट्स इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. फर्स्ट पार्ट में मेन कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं स्टैट्यूट का वो दे दो, उसके बाद अंडर सेपरेट हेडिंग्स ब्रीडर्स राइट क्या है और फार्मर्स राइट क्या है अंडर डिफरेंट हेडिंग्स. देन ओके थोड़ा प्रेजेंटेबल आंसर लगेगा. एंड उसको दो पार्ट्स में जब तुमने लिखा है तो ओके 10 मार्क्स में से फर्स्ट पार्ट को वो इवेलुएट करेगा 7 या 6.5 जो भी है. सेकंड पार्ट को अगर तुमने प्रॉपरली लिखा है जो भी है राइट्स, देन यू विल गेट 6 or 7 देयर. और इफ यू हैव written all the points then you may get up to 8 also, प्रॉपरली लिखा है तो. सो 20 मार्क्स का है तो अगेन वर्ड लिमिट ज्यादा होगा, सो बी केयरफुल. एक ही स्ट्रेच में लिखोगे ना आंसर को, पूरा फार्मर्स राइट भी मिक्स कर दिया पॉइंट्स के अंदर तो मार्क्स ज्यादा मिलने का चांस नहीं है. अगर तुमने सेपरेट हेडिंग्स में लिखा है फार्मर्स राइट अलग से, ब्रीडर्स राइट अलग से, देन you might get 1 or 2 marks more than the other person. Then second question, what do you understand by the term seed quality? Again it is all again in two parts. Describe the regulatory and certification systems that are in place to ensure seed quality. So again ये दो parts में. So first part is seed quality क्या है explain करने के लिए बोल रहा है. Second part, what are the regulatory and certification systems or rules and regulations what are available to maintain the seed quality. So first seed quality, see it cannot be defined by a single parameter. seed quality कभी भी एक single parameter से तुम describe नहीं कर सकते. It is described by multiple parameters. Okay, genetic purity, physical purity, size of the seed, color of the seed, weed seeds mixed है क्या उसमें, other crop seed mixed है क्या, all those things will count. Germination percentage. Okay, so seed quality is not based on single parameter. Multiple parameters are required to describe seed quality. Then वो चीजें तुमको genetic purity ये क्या होता है वो तुमको बताना है. Don't go on explaining that, but at least जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या है, फिजिकल प्योरिटी का मतलब क्या है, जर्मिनेशन परसेंटेज, अदर क्रॉप सीड, सीड कलर, सीड वेट, वो चीजें तुमको एटलीस्ट 1 लाइन, 1.5 लाइन तुमको बताना पड़ेगा. देन गो टू द सेकेंड पार्ट, रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या मेजर्स हैं सीड क्वालिटी को मेंटेन के लिए. सीड इंस्पेक्टर गोज एंड विजिट्स, जो तुम्हारा जहां पर सीड प्रोडक्शन जहां पर फील्ड में हो रहा है वहां जाके विजिट्स होते हैं रेगुलरली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सीड प्रोडक्शन. रोगिंग प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए. देन हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी विजिट होता है. देन जब वो मिलिंग के लिए जाता है सीड प्रोसेसिंग प्लांट में, देन ऑल्सो देयर इज अ विजिट. ओके, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, सीड सैंपल इज टेकन एंड सेंड टू द सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी, वहां से फिर आता है, उसके बाद तुमको सर्टिफिकेशन मिलता है. ऑल दीज थिंग्स आर डन टू मेंटेन द सीड क्वालिटी, राइट. सो अगेन इन 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट्स को यू हैव टू डिस्टिंग्विश इन द आंसर. ऐसा नहीं कि वो सीड क्वालिटी है और सीधा उसके साथ साथ ये लिखते जा रहे हो, नहीं, दोनों दो अलग अलग पार्ट्स में लिखो. फर्स्ट पार्ट में सीड क्वालिटी क्या है, सेकेंड हेडिंग दो रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम और regulations which are in place to maintain the seed quality, heading underline, फिर नीचे उसके पॉइंट्स लिखो. थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाओ अपने आंसर को. ओके, 15 मार्क्स का है. देन सो 40 मार्क्स का सीड साइंस का पूछा है. डिफरेंशिएट बिटवीन वेराइटल सीड प्रोडक्शन एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, 5 मार्क्स. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम, बहुत सालों में, 7-8 सालों में पहली बार थोड़ा सा दिमाग लगा के डिफरेंसेस का मार्क्स को अलॉट किया. अदरवाइज बहुत ही छोटा डिफरेंस है और अदरवाइज यू कैन नॉट राइट मोर पॉइंट्स, और 2 और 3 पॉइंट्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा, वो भी 10 मार्क्स के लिए दिया है, बहुत बार देखा है मैंने. ओके, दे हैव गिवन डिफरेंसेस फॉर 10 मार्क्स वेयर यू कैन नॉट राइट मोर देन 2 और 3 पॉइंट्स. सो फर्स्ट टाइम, बहुत सालों में, 7-8 साल में पहली बार 5 मार्क्स दिया है, जहां
इसमें 10 मार्क्स लिखने जितना आंसर नहीं आएगा, 3 या 4 पॉइंट्स आएंगे मैक्सिमम। मेन डिफरेंस क्या आता है वेराइटल एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में? देयर आर डिफरेंट रोज फॉर मेल एंड फीमेल। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल का एक फिक्स्ड रेशियो होता है, इट कैन बी 4:1 और 2:1, जो भी है, फीमेल टू मेल, और वो वैरायटी में नहीं होता है। सेकंड, हियर मेल स्टेराइल लाइन, वी कैन यूज मेल स्टेराइल लाइन और chemical hybridizing agents can also be used, whereas varietal seed production में वो यूज नहीं करते हम लोग। Then seed yield is more on varietal seed production, क्योंकि hybrid seed production में we don't harvest the male lines। जो लाइन्स को हम लोगों ने मेल प्लांट की तरह यूज किया है उनको हम लोग हार्वेस्ट नहीं करते हैं, ओनली द फीमेल लाइन्स आर हार्वेस्टेड, सो yield तो कम आएगा ही, seed yield is less in hybrid seed production when compared to varietal seed production। so ये जो मेन 3 differences हैं वो लिख दो। so that was about seed science and 40 marks एवरेज है, क्योंकि 40 to 60 के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है सीड साइंस का। ओके, सो नथिंग आउट ऑफ ऑर्डर, तो नॉर्मल है ये सीड साइंस के लिए। देन कमिंग टू हॉर्टिकल्चर, नाउ हॉर्टिकल्चर इज अ सब्जेक्ट वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस for how many marks, I mean how many marks are allotted to, will be allotted to this particular subject, क्योंकि sometimes it is asked only for 30 marks or 40 marks, and there are years where it has been asked for 80 or 100 marks। बहुत ज़्यादा horticulture का weight है, so most of the times students find it difficult to remember पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में यू हैव टू गो थ्रू फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक, कोई फिर एलोवेरा, इतना सब पढ़ लिया तो एलोवेरा पूछ लेता है वो। सो बहुत मुश्किल है याद रखना पैकेज एंड प्रैक्टिस। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज, इवन आई रिकमेंड दैट एटलीस्ट गो थ्रू द मेन क्रॉप्स, बिकॉज यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग एंड वी डोंट नो इफ यू आर लकी। आई मीन कम क्रॉप्स पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पूछेगा। अगर लक ठीक नहीं है तुम्हारा हॉर्टिकल्चर के साथ, बिकॉज हॉर्टिकल्चर थोड़ा सा गैम्बलिंग है, यू कैन नॉट गो थ्रू ऑल द क्रॉप्स बिकॉज बहुत सारे क्रॉप्स हैं। जितना तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उतना हार्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उतना तुमको यील्ड नहीं आएगा। सो इन्वेस्ट वेरी केयरफुली एंड स्मार्टली, सो दैट जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स तुम देख के जाना। Now coming to horticulture, so first question is, what are the causes of post-harvest deterioration of flowers? Elaborate the techniques to enhance the shelf life of the flowers. Now there are many reasons, मैं तो list बना के लाया हूँ, मैं तुमको बता देता हूँ, I will read them out. So first part is, what are the causes of post-harvest deterioration of flowers? First, क्या reasons है post harvest, harvest करने के बाद वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उसका reasons क्या है? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, कैसे एनहांस कर सकते हो शेल्फ लाइफ को, हाउ कैन यू एनहांस द शेल्फ लाइफ, व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड टू एनहांस द शेल्फ लाइफ, 2 पार्ट्स में। सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द रीजंस। सो फ्लावर मैच्योरिटी, एट व्हाट स्टेज यू आर हार्वेस्टिंग द फ्लावर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक है। उसके अंदर अगेन देयर आर थिंग्स, गो टू इंटरनेट, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे तुमको इसके ऊपर, ठीक है। सो फ्लावर मैच्योरिटी और स्टेज of harvest, temperature respiration rate को increase करता है, ओके, हाई टेम्परेचर होगा तो respiration rate increase होगा। फूड सप्लाई, अगर फूड सप्लाई उसको प्रॉपरली नहीं है, या फिर अर्ली मॉर्निंग तुमने उसको हार्वेस्ट कर लिया जब उसका फूड रिजर्व्स खत्म हो गया है, ओके, सो देर आर डिफरेंट रीजंस, okay, food supply, light conditions, then water supply, bacterial plugging, okay, harvest कर लिया तुमने, harvest करने के बाद बिकॉज वो स्टेम जब तुमने काटा है ना, स्टेम के एंड पे ना बहुत सारे शुगर्स, अमीनो एसिड्स होते हैं, दैट में लीड टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एंड दीज बैक्टीरियल स्लाइम में प्लग द वेजल्स, तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, हार्वेस्ट करने के बाद न्यूट्रिशन
दीज फ्लावर्स विच हैव बीन हार्वेस्टेड, कट कर दिया है, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलना है, सो यू हैव टू सप्लाई शुगर सोल्यूशन, पल्सिंग बोलते हैं हम लोग, तो उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिटोरिएशन. देन इथिलीन प्रोडक्शन, ओके, मैकेनिकल डैमेज, हार्वेस्ट करते समय या फिर हैंडलिंग करते समय कोई मैकेनिकल डैमेज हुआ है, डिजीजेस फील्ड में शुरू हो सकता है, दैट में कंटिन्यू थ्रू आउट द handling and storage process. So there are several reasons why there can be deterioration after the harvesting. Then elaborate the techniques to enhance harvesting. So first, pre-cooling. जैसे ही तुम हार्वेस्ट करते हो तो इमीडिएटली ऐसे एनवायरनमेंट में उनको रखो जहां पर ठंडा है, फर्स्ट शेड में, शेड से कूल टेम्परेचर्स पे. प्री कूलिंग, देन डीलीफिंग एंड क्लीनिंग, जो भी पत्ते हैं जिसके ऊपर कोई डिजीज स्पॉट्स है या फिर थोड़ा सा ओल्ड लीव्स है, उनको निकाल दो. डीलीफिंग एंड क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, बंचिंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग. ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एक है केमिकल सॉल्यूशंस का है. ओके, केमिकल सॉल्यूशंस विच आर यूज्ड. फर्स्ट तो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस है, अगर तुम हार्वेस्ट कराए तो पानी में रखते हैं ताकि वो हाइड्रेटेड रहे. ओके, सो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस. देन पल्सिंग, शुगर सॉल्यूशन देते हैं ताकि उसको कार्बोहाइड्रेट सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलता रहे. देन एंटीबैक्टीरियल, ओके, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी अप्लाई करते हैं हम लोग. सिल्वर थायोसल्फेट फॉर दोज प्लांट्स विच आर इथिलीन सेंसिटिव, या फिर सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं हम लोग. एंड यू कैन ऑल्सो यूज गिबरलिक एसिड टू एनहांस द शेल्फ लाइफ. So there are different techniques to enhance shelf life. ये chemical solution वाला compulsory लिखना है, बाकी सब लिख के chemical solutions नहीं लिखा तुमने. Rehydration के लिए use करते हैं हम लोग water, pulsing, sugar solution के लिए. Then we also use antibacterial solutions to prolong the shelf life. So two parts, दो parts में पहले तो बताना है कि deterioration का क्या reason है, उसके बाद कैसे तुम shelf life को improve कर सकते हो. Then give a brief account of tomato cultivation with respect to climate, soils, sowing time, nutrient, water and post harvest management. Now tomato crop, see अगर important crops vegetables में अगर तुमको potato, tomato, onion, cauliflower, cabbage, at least ये देख के जाओ, एटलीस्ट पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मिनिमम इतना तो पढ़ना है क्रॉप्स में, वेजिटेबल क्रॉप्स में. सो पर्टिकुलरली पूछा है क्लाइमेट, सॉइल्स, सोइंग टाइम, न्यूट्रिएंट एंड वाटर, इरिगेशन एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ टोमेटो. नाउ अब तुमको स्पेसिफिकली याद रखा, टोमेटो इज अ वार्म सीजन क्रॉप. ओके, नॉर्मल टेम्परेचर जो है तुम्हारा 21 to 25 के रेंज में उसका ऑप्टिमम ग्रोथ, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, वो अच्छा ग्रोथ होता है उसमें. इफ द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 32, 33, 35 या उससे ऊपर जाता है तो द ग्रोथ इज हैम्पर्ड. इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 10 डिग्रीज, अगेन ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड. सॉइल्स में जाओगे तो लोम टू सैंडी लोम सॉइल्स चलेगा इसके लिए. लोम सॉइल्स आर बेस्ट. लोम टू सैंडी लोम के बीच में रेंज, pH 6 to 7, इट इज ए सेंसिटिव प्लांट, 6 to 7 का pH रेंज. देन अगेन सोइंग टाइम, सोइंग टाइम तुम तीनों सीजन में डाल सकते हो, इन ऑल द 3 सीजन्स, खरीफ, रबी एंड समर. देन इरिगेशन अगर तुम आते हो तो इरिगेशन में लाइट इरिगेशन डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप, 3 to 4 days. अगर रबी में डाल रहे हो तो 8 to 12 days के बीच में, 7 to 8 days इन खरीफ, और अगर समर में है तो 5 to 6 days, विद इन 5 to 6 days का इंटरवल में. नाउ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में 120:80:50, दैट इज द रेशियो, एंड इट में वेरी क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन एरिया टू एरिया. ब्लैंकेट एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, अगर तुम सॉइल टेस्टिंग नहीं किया है तो 120:80:50, दैट इज द ब्लैंकेट एप्लीकेशन. देन पोस्ट हार्वेस्ट में अगेन हार्वेस्टिंग कैन बी डन. बहुत सारे सब स्टेजेस हैं. अगर तुम नॉर्मल अगर तुम देखोगे तो 3 स्टेजेस कैटेगराइज कर सकते हो. अगेन 3 स्टेजेस से ज़्यादा भी हैं, पर्टिकुलर स्टेजेस और भी हैं उसके अंदर अगर डीप में जाओगे तो. नॉर्मली तुम अगर देख रहे हो मैच्योर ग्रीन, इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग इन टू डिस्टेंट मार्केट, मैच्योर ग्रीन. देन फुल्ली राइप
एंड रेड स्टेज, दीज आर द टू अदर स्टेजेस. रेड स्टेज जो है नियर मार्केट, अगर मार्केट नजदीक है तो, एंड फुली राइप फॉर प्रोसेसिंग. अगेन फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो अगेन फर्स्ट स्टार्ट होता है प्री कूलिंग से. प्री कूलिंग एट 13 डिग्रीज. नाउ यू विल गेट ए कंप्लीट आर्टिकल ऑन इंटरनेट, तुमको इंटरनेट पे कंप्लीट आर्टिकल मिल जाएगा. प्री कूलिंग, क्लीनिंग, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करो, देन सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज 10 to 15 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, एंड 85 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड वेरी लो टेम्परेचर्स आर ऑल्सो डिटरमेंटल, क्योंकि ये वार्म सीजन क्रॉप है, चिलिंग इंजरी होगा. सो बहुत सारे हैं पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो. क्रॉप पूरा तुमको पता है ना, ये एटलीस्ट पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, आई कैन नॉट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, राइट. पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, पीटीओ, कॉलीफ्लावर, कैबेज, एटलीस्ट दीज वेजिटेबल्स मिनिमम इतना तो पढ़ो. छोड़ना मत पूरा, क्योंकि फिर रिस्क है. फ्रूट्स में भी मैंगो, बनाना, सिट्रस, ग्रेप, एप्पल, पोमग्रेनेट, अगर पपाया, एटलीस्ट ये 5-6 फ्रूट्स तो एटलीस्ट देखना है. अगेन वन मोर क्रॉप, मैंगो. सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ही दिया है, क्रॉप्स दिया है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. मैंगो में भी देखो, मैंगो में पूरा पैकेज एंड प्रैक्टिस नहीं पूछा है. मैंगो में भी पर्टिकुलरली दे हैव आस्क्ड प्रोपगेशन, इधर वेनियर ग्राफ्टिंग को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम. 15 मार्क्स का विथ डायग्राम, एक्सप्लेन इन शॉर्ट वेनियर ग्राफ्टिंग. देन intercropping again in the initial years before the canopy covers the entire field, before the canopy fully expands, intercropping can be done. तुम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स डाल सकते हो, ग्रेन्स और पल्सेस, वट एवर यू नीड. देन बाइनियल बीरिंग, बाइनियल बीरिंग पूछा है, फ्रूट ड्रॉप. दीज टू आर नॉर्मली आस्क्ड एज सेपरेट क्वेश्चन. अलग से क्वेश्चन पूछता है फ्रूट ड्रॉप क्या होता है, या फिर अल्टरनेट बीरिंग क्या होता है, ऐसे बोल के अलग से आता है. लेकिन इसमें क्या पूछा है, मैंगो के अंदर ही शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट तुमको लिखना है. यू कैन नॉट गो ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज बाइनियल बीरिंग, बस छोटा सा बताना है बाइनियल बीरिंग क्या है और कैसे उसको मैनेज करते हैं, 1-2 लाइन में बस. मैनेजमेंट इन 1 or 2 लाइन्स. एक्सप्लेन बाइनियल बीरिंग क्या होता है 2 to 3 लाइन्स में. देन फ्रूट ड्रॉप, टाइप्स ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स, व्हाई फ्रूट ड्रॉप हैपेंस, फ्रूट ड्रॉप क्यों होता है, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप और जून ड्रॉप बोलते हैं. देन प्री हार्वेस्ट ड्रॉप विच इज मोस्ट डैमेजिंग फ्रूट ड्रॉप, और क्या रीजंस है एक एक वर्ड में, फ्रूट ड्रॉप के क्या जेनेटिक रीजंस हैं. देयर आर सम फैमिलीज एंड विद इन फैमिली. ओके, रोजेसी का एग्जांपल दे सकते हो, एंटायर फैमिली शोज अल्टरनेट बेयरिंग. देन विद इन द सेम क्रॉप डिफरेंट वेराइटीज behave differently, some varieties are regular bearers, some varieties are alternate bearers. मैंगो में तुम एग्जांपल दे देना. देन ब्लैक टिप बोला है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी दिया. ब्लैक टिप, जहां पर बीक रीजन, फ्रूट का जो बीक रीजन होता है, ये वाला रीजन जो है ब्लैक हो जाता है. ओके, इट टर्न्स ब्लैक, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से. ब्रिक क्लिन्स, जहां पर वो ईंट बनाने वाली ईंट की भट्टी होती है ना, वो ईंट की भट्टी से ये सल्फर डाइऑक्साइड वो मैंगो ऑर्चर्ड्स की तरफ अगर धुआं जा रहा है, देन दैट मे लीड टू ब्लैक टिप. सो पर्टिकुलर टॉपिक्स पूछा है, पूरा पैकेज एंड प्रैक्टिस लिखो, क्लाइमेट सॉइल वो सब नहीं, इसमें से भी पर्टिकुलर पूछा है. इंपॉर्टेंट पार्ट्स, प्रोपगेशन, विनियर ग्राफ्टिंग बताना है, इंटरक्रॉपिंग, बाइनियल बेयरिंग या अल्टरनेट बेयरिंग, फ्रूट ड्रॉप, ब्लैक टिप. Only the important parts have been asked. Then, what is meant by physiological disorders? अब scientifically तुम इसको explain कर सकते हो. Otherwise, simple words में बोलना है तो, whenever normal physiological processes of plant are hampered, or whenever normal metabolic activity of the plant is hampered by non-pathological causes. Physiological disorder बोला है, non-pathological causes. ये पैथोजन की वजह से नहीं हुआ है, उसको डिजीजेस के अंदर ही आता है. फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर क्लासिफाइड अंडर डिजीजेस, बट दीज आर नॉन पैथोजेनिक डिजीजेस. ओके, सो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मे बी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी और aberrant weather conditions, cold, dry condition, too wet condition. नॉन पैथोजेनिक रीजंस की वजह से जो आते हैं उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं. देन डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ पोटैटो.
you have to name the physiological disorders. मेन रीजन वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, कि क्यों आता है और कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, एक लाइन में बस. वन नेम द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ब्लैक हार्ट है, जैसे ब्लैक हार्ट. ब्लैक हार्ट क्या है, सिम्टम वो क्या है, क्यों आता है. ओके, हाई स्टोरेज टेम्परेचर एंड लेस ऑक्सीजन सप्लाई. सिंपल, बस 2 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं. उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ऑब्वियसली उसका उल्टा रखो, ऑक्सीजन सप्लाई करो, स्टोरेज टेम्परेचर को रिड्यूस करो. सो नेम द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड राइट व्हाई द पर्टिकुलर नेम कम्स. वो नाम क्यों आता है, ब्लैक हार्ट क्यों उसको आया है नाम, सिम्टम क्या है उसका, क्या रीजन है और कैसे कंट्रोल करना है. एक एक वर्ड में, ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 मार्क का ही दिया है. ओके, सो ब्लैक स्पॉट. ओके, सो ब्लैक स्पॉट जो है, ब्लैक स्पॉट कम्स बिकॉज ऑफ मैकेनिकल डैमेज ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग. ओके, देन ब्लैक हार्ट स्टोरेज टेम्परेचर्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से. ग्रीनिंग, एक्सेसिव लाइट अगर एक्सपोज करते हो तो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड सोलानिन पिगमेंटेशन, सोलानिन अल्कलॉइड. देन फ्रीजिंग, लो टेम्परेचर इंजरी एंड लार्ज लेंटिसल्स, एक्सेसिव इरिगेशन दोगे तो. स्किनिंग, हॉलो हार्ट, दीज आर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो पोटैटो के अलावा, पोटैटो, टोमेटो में भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं. देन वी हैव कैबेज, सॉरी कॉलीफ्लावर. सो पोटैटो, टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर. वेजिटेबल्स में अगर स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन आएगा, अगर जैसे पोटैटो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछा ना, अगर कोई और क्रॉप में पूछना है वेजिटेबल्स में, तो ये दो, टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर, दीज आर द 2 अदर क्रॉप्स विच हैव मेनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. बाकी और तुमको हर वेजिटेबल में 1-2 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो मिलेंगे, लेकिन ये 3 क्रॉप ऐसे हैं जिससे बहुत सारे हैं, तो इनको एक अलग से क्वेश्चन दिया जा सकता है इनके ऊपर. दे माइट आस्क फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, लिखो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है, 4-5 से ज्यादा है, तो सेपरेट क्वेश्चन आने का चांस है. कॉलीफ्लावर, पोटैटो, टोमेटो, इन तीनों का तो एटलीस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का नोट्स बना लो. देन डिस्कस द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूफ गार्डनिंग इन द सिटीज. नाउ ये क्वेश्चन जो है, समटाइम्स क्वेश्चंस लाइक दिस अपीयर इन द एग्जाम बिकॉज न्यूज में आर्टिकल्स आया होगा इसके बारे में 1 साल पहले या फिर रेगुलरली, बिकॉज हीट पॉकेट्स या हीट आइलैंड्स आर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन समर्स, स्पेशली इन द सिटीज. तो उसको कम करने के लिए रूफ गार्डनिंग, या फिर दिस इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, ये तो बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, ये तो बहुत पहले से चल रहा है. इवन मेडिवल टाइम पे, इवन यूरोप में टर्फ वो लोग ग्रो करते थे. पीपल यूज टू ग्रो टर्फ ऑन द रूफ्स. सो इट इज नॉट न्यू, बट अगेन अभी ये वापस रिवाइव हो रहा है कल्चर, ये स्पेशली सिटीज में. सो देर आर मेनी रीजन्स, आई मीन व्हाई टू गो फॉर. स्कोप क्या है या फिर इसका बेनिफिट्स क्या है. तो एक तो रिक्रिएशन है, पीपल विल गेट समथिंग टू डू, आई मीन इंटरेक्टिंग विद नेचर. उसके बाद इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर. अगर रूफ में तुमने कराया तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा, हीट अप नहीं होगा, सो एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगा, तुमको एसी 24 घंटे रखना नहीं पड़ेगा. ओके, देन पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन देता है. बहुत सारे यार इसमें, यू कैन राइट मेनी पॉइंट्स. एंड अगेन जब ये लिख रहे हो तो टाइप्स भी लिख देना. एक्सटेंसिव रूफ गार्डन्स है, इंटेंसिव रूफ गार्डन्स है एंड सेमी इंटेंसिव. एक्सटेंसिव गार्डन्स आर दोज वेयर द प्लांट्स ऑफ स्मॉलर हाइट, या ज्यादा से ज्यादा 6 इंचेस, 3 to 6 इंचेस का ग्रोथ होता है. मेनली ग्रास या फिर कैक्टस, सक्यूलेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं, एक्सटेंसिव ग्रास होता है उधर. देन इफ यू गो फॉर इंटेंसिव, 8 to 12 inches plants, or sometimes you can see shrubs or small trees. Okay, and there is in between both of these, extensive, intensive and semi intensive, इन दोनों के बीच का. अगेन रेन वाटर जो हार्वेस्ट किया है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने में, रिक्रिएशन, ये वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं. जस्ट इंटरनेट पे टाइप करो, बहुत मिल जाएंगे तुमको पॉइंट्स.
मेक ए शॉर्ट नोट्स, पता नहीं वापस पूछ ले. So that was about seed science and horticulture. So in the next video we'll discuss about plant protection, plant physiology and miscellaneous part, right? So that was all. Thank you very much.